So what's this controversy all about? Let's tell you a little more. As the nation mourns the Pahalgam terror attack victims, Congress has at least a section of the leaders seem to have insulted the victims here. Leader Saifuddin Source has backed Pakistani terrorists. He says that if Pakistan claims they have no role in the attack, we should take their word for it. He called the Indus Water Treaty Pakistan's lifeline and said that India must not shut it. While the victims were crying and narrating their horrific ordeal, a minister in Karnataka and an MLA in Maharashtra, both from the Congress, have stoked controversy by insulting the terror victims. Quashing the victims' statements, the minister in Karnataka, R.B. Timmappa, says that terrorists didn't ask about the religion before shooting people. Blaming the government, he said the situation is being twisted for religious and political gain. Guess who said this? It's been said by Pakistan already. A similar statement was made by Congress leader Vijay Vadattawad, who said that terrorists have no caste or religion. He added that terrorists should be caught red-handed rather than twisting the narrative. BJP is hit out at the Congress over this, saying that these comments are anti-national and that Pakistan media is using them against India. Congress has issued a gag order to all party leaders, instructing them to refrain from commenting on the Pahalgam terror attack. No civilized, nation, no civilized person can accept that. It's atrocity and killings, totally unacceptable. So, by and large, every citizen in India should adopt the line that the Prime Minister has adopted. After all, he is the leader of the nation. Having said that, I would also say that if Pakistan says that it is not involved, let us accept that argument for a time, and we shall ultimately go by our investigating agencies, and they will know better after they go into it minutely and then look at what is what. I don't think that India should go that far, because it is a treaty, it has worked well even during the wars, and it offers advantages both to India and Pakistan. What will we do with water that is available? It will submerge Punjab and Jammu and Kashmir altogether. And water should flow down to the sea through its own course. That is what is happening this time. I have a feeling we mustn't go that far. ಯಾರ ನೀವು ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗ ಜಾತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ ಹೊಡೆಬಿಡ್ಬಿಡಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಹೊಡೆಯಟ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಯಾರಿಗಿರೋದು ಅದನ್ನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಚ್ಚಿ ಅದ್ರ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಹುನ್ನಾರ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरेकी घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्यूर नहीं है, इस सरकार का फेल्यूर नहीं है. इस बारे में कोई बात नहीं करता. बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा. अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा. ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है. ये प्लान करके मत करो. टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो. और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो. यही देश के वासियों की भावना है. सैफुद्दीन सोज जो कश्मीर के नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं, उनका कमेंट सुनने में आया. फॉर पाकिस्तान वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पसेस. इफ द रिवर वाटर कैन नॉट बी डाइवर्टेड, the state of Punjab and Jammu and Kashmir will be totally submerged. The Indus Water Treaty has survived the wars between Pakistan and India. This water treaty is a lifeline for Pakistan. If Pakistan take a stand that they are not involved in Pahalgam attack, then we should accept Pakistan's word. देख लीजिए, हमें पाकिस्तान के शब्दों को स्वीकार कर लेना चाहिए. ये क्या है? इसे मैं irresponsible कहूं, शर्मनाक कहूं? Remember, survivors said that the terrorists forced them to recite the kalma at gunpoint. Listen to what the terror survivors had said at that point in time.
क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। भगवान के लिए बचा लो। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? उस दिन एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ? अरे हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू। पढ़ दे पहली गन उसी पे चलाई। मेरा बेटा और बहू बैठे थे, स्नैक्स वगैरह खा रहे थे, तो पीछे से आए ये आतंकवादी और इन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो। उन्होंने जैसे हिंदू बोला है वैसे तुरंत गोली मार दी सर पे। मेरी बहू कहने लगी मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ मोदी को बताना, तुम्हें नहीं मारेंगे। और फिर उसके बाद बाकी लोगों को गोलियां चलाई को, और फिर और आ गए, तो तब तक ये लोग भागे जान बचा के किसी तरह ये लोग। जब मेरी भाभी से बात हुई तब उन्होंने मुझे बताया कि शुभम को गोली मार दी है और सर के पास गोली मार दी है। उसे कहा था कि हम आपको इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि आप जाकर के अपनी सरकार को बता सकें कि हमने आपके साथ क्या किया। भावुक क्षण है परिवार के लिए, आप सभी के लिए, लेकिन जो बात निकल के सामने आ रही है, हुआ क्या था? आप लोगों को क्या कुछ बताया गया जेनिफर जी की तरफ से या बच्चों की तरफ से, जो आंखों देखी उन्होंने वहाँ महसूस किया? जेनिफर ने जो कल हम लोगों को भी बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी पीड़ा बताई, उसमें यही सामने आया है कि जब इन कायर आतंकियों ने जब हमला करना शुरू किया तो मेरे भाई ने इन लोगों को, बच्चों को, अपनी पत्नी को वहाँ से धक्का देके भगाया, और जिसके कारण भागते समय हमारी आकांक्षा बिटिया को गोली लगी पैर में, और जेनिफर जो हमारे बहू है वो नीचे गिरने के कारण बेहोश हो गई, और शायद इसी कारण से वो बच पाई। और जब मेरे भाई को उन कायरों ने रोका और बिठाया अपने घुटने के बल पे, और घुटने के बल पे बिठा के उससे पूछा मेरे भाई से कि किस धर्म के हो, तो उसने बोला मैं तो ईसाई हूँ। बोले तो क्या हो गया, कलमा पढ़ के सुनाओ। और कलमा पढ़ना अगर आता होता तो शायद बच जाता। इसका मतलब यही है कि वो एक विशेष धर्म के लोग थे और वो केवल वो देखना चाहते थे कि हमारा वाले को नहीं मारे, और इसी तरीके से अलगाववाद और जो विवाद है और बढ़ते चले जाए। परंतु मेरे भाई ने एक साबित कर दिया, जो कसम उसने शादी के समय ली थी अपनी पत्नी की रक्षा की, वो उसने अपने बच्चों के लिए और अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए अपनी जान दे दी। आप कल्पना कीजिए कि दो लोगों ने जब बोला कि हम मुसलमान हैं, तो आप इन कायरों की हरकतें देखिए कि उसकी पैंट उतारी गई, देखा गया कि इसका खतना हुआ है या नहीं हुआ है, और जब देखा कि खतना नहीं है तो वहीं गोली मारी गई। आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा वो एक पैगाम लोगों को देना चाहते थे कि हम लोग केवल मुसलमानों को बचाने के लिए आए हैं और बाकी हिंदू और बाकी दूसरे धर्म वालों को मारना चाहते हैं। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप